Hi students, so till now we have completed until I think speciation the last video lecture. Now today we'll talk about the geological time scale and precisely we will discuss about the evolution of plants and animals, and at the end we'll discuss about the evolution of human being or human, and we'll try to finish these are the two main topic left in the chapter of evolution, so we'll try to finish it today in this video lecture. Let's start. So the first we'll discuss the evolution of plants. So let me clarify before I start. See, first of all we'll discuss about with the table the geological time scale, which is also available in the reference book, but I have already suggested to you. And then we'll try to first of all we'll try to understand the different types of the way the different types of plants they have evolved, and at the end what are the point I have whatever the point I will discuss, you can get it on the on your screen in slides, and I will you can pause it and you can write the points. So let us start. First, origin or we can say origin and evolution of life. As we have already discussed, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, हमने शुरू में ये पढ़ा कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो कब हुआ, राइट? फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो कब बना. So we know that it is about 2000 million years ago the first cellular forms of life actually originated on Earth, right? And these some of these cells had pigments to capture the solar energy as well. तो उसमें से कुछ जो सेल थे वो क्या कर दिए, उनमें उन्होंने क्या डेवलप किया, उन्होंने डेवलप किया क्लोरोफिल, दैट इज सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का जो पिगमेंट, दैट वन. And they have started to do the process of photosynthesis, and they started to produce oxygen, right? And these type of these cells were actually prokaryotes. We can say this we used to find this type of animal, this type of organism in unicellular organism during Archaeozoic era, and slowly these prokaryotes actually become eukaryotes. Okay. Now if we talk about the plant evolution, so here you can see in the table, and already we have discussed what is era, what is epoch, and what are periods, right? So most of the time we talk about epoch and periods. Era is also mentioned in this part. You can see this is the table. You can see this is the era, right? Archaeozoic, Mesozoic, Paleozoic, है ना? Then you have the periods as well and epoch as well. ठीक है? तो periods तो यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन you can see the epoch at least, right? So it's all depends. It all depends upon the like what we are going to discuss. हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कब क्या कौन सा एनिमल कौन सा प्लांट कब जो है इवॉल्व हुआ था, कब वो मतलब ओरिजिन हुआ था और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. सो बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला है कि यूकैरियोट्स. फर्स्ट इज द यूकैरियोट्स. Those eukaryotes actually developed from the prokaryotes. They have they actually further divided and diversified into some green algae. They actually ये जो आपकी prokaryotes है, जो eukaryotes से बना ये जो eukaryotes है जो कि prokaryotes से बने थे, photosynthetic eukaryotes, they were actually diversified and they form green algae, and we can say the early the early invertebrates also evolved from these prokaryotes. तो जो prokaryotes थे उसमें से algae भी बन गए, कुछ डाइवर्सिफाई होके, और कुछ जो है वो बन गए आपके but we can say invertebrates जो है वो इवॉल्व हो गए. ठीक है. Now the first organism that existed on land were plants. जो पहला ऑर्गेनिज्म था जो धरती पे या जो लैंड में एग्जिस्ट किया था, जो आया था लैंड में, पानी से लैंड में, लाइफ का ओरिजिन कहां पे हुआ था?
The life was originated in water, but the first land organism were the plants. Plants ही जो थे वो land के first life form थे, ठीक है, मतलब what we can say the organisms. Now the bryophytes were the first plants to colonize the land. Bryophytes जो थे they were the first who colonized, मतलब land में सबसे पहले जो organism develop हुआ था वो कौन था? Bryophytes. Those were plants, right? Next, अब पैलियोजोइक एरा से हमें जो फॉसिल्स मिलता है, जो फॉसिल्स हमें मिला है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि मिडिल पैलियोजोइक जो टाइम था, जो ईरा था, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम or that middle Paleozoic era is actually considered as the age of algae, ठीक है. क्यों मानते हैं हम इसको एज ऑफ एल्गी, मिडिल पैलियोजोइक एरा को? क्योंकि उस समय एल्गी का जो पॉपुलेशन था, एल्गी का जो ग्रोथ था वो मैक्सिमम था, ठीक है, क्या था वो? मैक्सिमम था ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है. नेक्स्ट, जो ये तो आपका जो पैलियोजोइक एरा था वो हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली, मिडिल एंड द लेट वन. जो अर्ली था उसमें हमने क्या देखा कि जो आपके यूकैरियोट्स थे वो डेवलप होके कुछ बन गए इन्वर्टिब्रेट्स, बेसिक इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ डेवलप होके एल्गी बन गया, ठीक है. और जो मिडिल पार्ट था पैलियोजोइक एरा का, वहां पे उस समय सबसे ज्यादा जो आपका डोमिनेंस था वो था एल्गी का. और later part, at the last part of the Paleozoic era, the ferns were also developed, and that's why the late part of the Paleozoic era is also known as age of ferns, ठीक है. Now all algal groups actually established during the Cambrian period. तो मैक्सिमम जो भी आपके जो algal group थे, अभी तक हमें जो कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ मैक्सिमम भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो जितने भी तरह के टाइप के एल्गल ग्रुप्स थे वो ज्यादातर कैम्ब्रियम पीरियड तक दे वर ऑल एस्टैब्लिश्ड, दे वर ऑल इवॉल्व्ड, राइट. नाउ द फर्स्ट लैंड प्लांट, पहला जो लैंड प्लांट था, ठीक है, वो क्या था? दैट वाज साइलोफाइट्स, राइट. That was xylophytes, and it was originated in Ordovician period. It was originated in Ordovician period, ठीक है. तो आप यहां देख सकते हो. So this is the chlorophyte ancestors, that is the eukaryotes, which have this different types of these are having the pigments, not different types, the pigments, green pigments, right? Then from there the next, that is called theriophyte ancestors, they were discovered, and they were considered as the ancestors of vascular plants. Vascular plants मतलब आपको पता होगा, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा. vascular मतलब those are xylons and phloems, right? ये जो vascular plants है उनके जो ancestors थे वो कहां से हमको मिला, वो कहां से डेवलप हुआ? यहां से, ठीक है, tacophytes. Next, in the evolutionary tree, if you see, you can find that rhina type A plants. These are rhina type A plants, and after that we can see xylophyton or xylophytes, ठीक है. ये जो दो थे, xylophytons and rhinia, or like rhinia type of plants, ये जो दोनों थे ना, they were the common ancestors, they are the primitive pteridophytes. हम पढ़ते हैं ना pteridophytes के बारे में, आपने पढ़ा होगा, bryophytes के बारे में पढ़ा होगा. So these were the primitive pteridophytes, and these pteridophytes actually slowly evolved and developed in other pteridophytes like ferns, then your ginkgos, etc., right? And from here also you can see there is one more branch is coming out, that is called Zosterophyllum. These are the primitive pteridophytes as well. तो जो ये basically xylophyton और जो आपके rhina type of plants है, इसके पहले डेवलपमेंट से पहले जो आपके ट्रैकोफाइट एंसेस्टर्स थे, इनके बीच में जो साइलोफाइटन और राइना टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रैकोफाइट्स, इनके बीच में ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज वन मोर ब्रांच, यू कैन सी इट्स कमिंग आउट. वो डेवलप हुआ था, उसको भी हम क्या मानते हैं? उसको भी हम प्रिमिटिव जो है एंसेस्टर है, प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स मानते हैं, या हम जो टेरिडोफाइट्स के प्रिमिटिव एंसेस्टर्स भी मानते हैं उसको,
ठीक है, या हम मान सकते हैं सिंपली दे वर द प्रिमिटिव टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स के बिल्कुल बेसिक फॉर्म्स थे वो, ठीक है। उसमें से एक और क्या था, जोस्टेरोफाइलम, इसको क्या बोलते हैं, जोस्टेरोफाइलम। तो आप देख सकते हो जोस्टेरोफाइलम से आगे जाके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पर्मियन पीरियड क्या क्या बना है, लाइकोपॉड जिसको हम बोलते हैं फर्न्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइकोपॉड्स, हम आगे भी पढ़ेंगे। एक होता है सिफेनोस सीड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्सटेल फर्न्स, और दूसरा होता है आर्बोरिसेंट लाइकोपॉड्स। तो जो आर्बोरिसेंट जो लाइकोपॉड्स है वो हम देख सकते हैं वो पर्मियम पीरियड में डेवलप हुआ था। इसके बाद अगर आप और देखोगे हर्बेशियस जो फर्न्स है, जो लाइकोपॉड्स है, लाइकोपॉड्स मतलब फर्न्स, ठीक है, लाइकोपॉड्स मतलब हम फर्न्स को बोलते हैं, ठीक है। तो जो लाइकोपॉड्स आपके हर्बेशियस लाइकोपॉड्स है वो कब डेवलप हुआ था, जुरासिक पीरियड में। और एब्रोरिसेंट जो है लाइकोपॉड्स जो फर्न्स है वो डेवलप हुआ था पर्मियम में। और उसके बाद फाइनली जो मॉडर्न फर्न्स हमें दिखते हैं वो डेवलप हुआ फाइनली, दैट इज आफ्टर द क्वाटरनरी पीरियड्स व्हिच इज द लेटेस्ट ईरा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट है, हम ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर वाला मतलब ये जो भी देख रहे हो दिस आर द मॉडर्न प्लांट्स, ठीक है, दिस इज अ रीसेंट पीरियड, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ने से आगे, थोड़ा ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्कस करने से पहले। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट स्पोर बेयरिंग प्लांट्स वर डेवलप्ड इन सिल्यूरियन पीरियड। जो फर्स्ट जो आपका कह सकते हो आप पोर बेयरिंग प्लांट्स है, वो फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था वो सिल्यूरियन पीरियड में डेवलप हुआ था, ठीक है। चलिए थोड़ा हम यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसके बारे में। तो हमने देखा कि जो बेसिक यूकैरियोट्स थे जो कि पिगमेंटेड थे, ग्रीन पिगमेंट थे, उनमें से जो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग तरह के जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स डेवलप हुए, एल्गी डेवलप हुए। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ दिस साइलोफाइटॉन और द Rhynia type of plants, and before that we have discussed Zosterophyllum, right? So these were considered as a primitive pteridophytes, इनको primitive pteridophytes हम मानते हैं, ठीक है। So ये जो साइलोफाइटन है ना, इसमें से आप देख सकते हो there are three different branches are coming out, ठीक है। तो पहला अगर आप देखोगे तो this one what we can call, this is here Sphenopsid और horsetail ferns। ये डेवलप हुआ था कब, ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। फर्स्ट टाइम ये जो फर्न डेवलप हुआ आपके साइलोफाइटॉन से, दैट इज ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। दूसरा है जो फर्न्स वो डेवलप हुआ, आप देख सकते हो जुरासिक पीरियड्स। कहां से डेवलप हुआ, देखो जो फर्न्स है वो दो तरह से डेवलप हुआ, आप देख सकते हो। एक तो ये जो है आपका इंटरमीडिएटरी जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है, दैट इज जोस्टेरोफाइलम, उससे हुआ है। और दूसरा जो दो वैरायटी है, एक है राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स, दूसरा है साइलोफाइटन, जो दोनों ही हम इनको भी मानते हैं प्राइमरी या प्रिमिटिव टेरिडोफाइट। सो इनमें से इससे भी फर्न्स डेवलप हुए, आप देख सकते हो अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है। एक जुरासिक में हुआ है, दूसरा हुआ है क्रिटेशियस में, उसके बाद जिसको हम जिंकोस कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी स्टडीज जिंकोस। ये कब डेवलप हुआ, ये भी क्रिटेशियस पीरियड में डेवलप हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। सो मिडिल पार्ट ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो साइलोफाइटन है, इसी से ही जो आपके दूसरे जो अलग जो प्लांट्स हैं वो भी डेवलप हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कॉनिफर्स जो है, इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग इन द मिडिल जुरासिक पीरियड, ठीक है। देखो हम देख सकते हो कि मिडिल पार्ट ऑफ द जुरासिक पीरियड दिस कॉनिफर्स वर डेवलप्ड फ्रॉम वेयर, साइलोफाइटॉन। इसके बाद साइलोफाइटन से ही हम क्या देख सकते हैं, प्रोजिम्नोस्पर्म, ठीक है। पहला जो जिम्नोस्पर्म है वो डेवलप हुआ प्रोजिम्नोस्पर्म, उससे बना प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं सीड फर्न्स, जिसमें बोल सकते हैं स्पोर या सीड्स बनने लगे थे फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहले क्या बना, साइलोफाइटॉन से पहले बना प्रोजिम्नोस्पर्म, उसके बाद क्या बना, प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि हम सीड फर्न्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और जिसको हम कह सकते हैं द फर्न्स व्हिच हैव स्पोर्स। और ये कब हुआ, प्रोजिम्नोस्पर्म डेवलप हुआ डेवोनियन पीरियड में, देखिए। और जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है वो डेवलप हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड, कार्बोनिफेरस टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कार्बोनिफेरस। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी दैट फ्रॉम द प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म वी कैन फाइंड टू ब्रांचेस, लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में एक है। लेफ्ट साइड में देखिए साइकैड्स, ठीक है।
साइकैड जो है वो डेवलप हुआ कब? जुरासिक पीरियड में। कॉनिफर्स, साइकैड्स आप देख सकते हो दोनों ही कब डेवलप हुआ है? ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, ठीक है, मिडिल ऑफ द जुरासिक पीरियड। साइकैड्स थोड़ा बाद में हुआ, कॉनिफर्स थोड़ा पहले हो गया। आप देख सकते हो कॉनिफर्स थोड़ा पहले डेवलप हो गया जुरासिक पीरियड में, और थोड़ा बाद में जुरासिक पीरियड में साइकैड्स डेवलप हुआ। और साइलोफाइटॉन से दूसरा फिर से हम देख सकते हैं और क्या डेवलप हुआ? जेनेटिल्स, ठीक है, और जीनेटिल्स भी डेवलप हुआ कब? क्रिटेशियस पीरियड में। कहां से, किससे? साइलोफाइटन। तो साइलोफाइटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना होगा। दिस आर द प्रिमिटिव टेरिडोफाइट, साइलोफाइटन एंड दीज राइनिया टाइप ऑफ प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो भी मॉडर्न डे प्लांट्स है ये सारे इसी जो प्रिमिटिव टाइप है इसी से डेवलप हुए धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने देखा साइकैड डेवलप हुआ है, ठीक है, एक ब्रांच से जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद दूसरा ब्रांच अगर हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे इसमें आगे जाके कौन से पीरियड में? क्रिटेशियस पीरियड में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। क्रिटेशियस पीरियड में ये जाके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला लेटर पार्ट, वेरी लेट पार्ट ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड, दिस डाइकोटिलेडन्स दे हैव डेवलप्ड, एंड दिस मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स के ही जो ब्रांच है उसी में कंटिन्यूस करके डाइवर्सिफाई होके मोनोकोटिलेडन्स बना। और क्या हुआ कि क्रिटेशियस पीरियड में ऑलरेडी दे हैव डाइवर्सिफाइड एंड दे हैव separated and they form monocotyledons differently as well, ठीक है। और वो कब हुआ? This all happens during the tertiary, middle tertiary periods, monocotyledons डेवलप हुआ। और dicotyledons, तो अब ध्यान दीजिएगा, monocotyledons बाद में डेवलप हुआ, dicotyledons पहले डेवलप हुआ during the Cretaceous, end part of the Cretaceous, the late Cretaceous period। एक्चुअली ये लेट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो जब ये ब्रांच डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे भी ऑलरेडी जो मोनोकोटिलेडन्स है वो डेवलप हो चुके थे, बट दे वर मोर बिकम एडवांस एंड दे बिकम मोर become proper diversified and become a proper monocotyledon in this era, this time, right? So I hope this is, see, first of all मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको बस ये समझना है कि ये जो पूरा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो यहाँ पे डायग्राम हमने दिया है, दिस इज नॉट अ डायग्राम एक्चुअली, दिस इज अ टाइम पीरियड एंड इट्स अ स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम पढ़ते हैं समझने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हो। तो आपको ये जो टेबल है यहाँ पे दिया हुआ ये समझना है, क्योंकि ये टेबल देख के आपसे सवाल पूछ सकता है और इसी टेबल से सवाल आ सकता है। सो इट इज इट्स नॉट, यू नो नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा बियॉन्ड दिस, ठीक है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा ना, तो इसका कुछ इसका समराइज करके कुछ पॉइंट्स है जो हमें पढ़ना चाहिए। तो अबाउट द ओरिजिन ऑफ द प्लांट्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्लांट, सो वो सारे पॉइंट्स मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, तो आप जस्ट यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट डाउन दोस पॉइंट्स, ठीक है। पहला हमने बात किया था ना कि यूकैरियोट जो है वो दे हैव द यूकैरियोट्स दे आर डाइवर्सिफाइड फ्रॉम द ग्रीन एल्गी, ठीक है, और उसी से इन्वर्टिब्रेट्स बने, पहले इन्वर्टिब्रेट्स। Then the first organism that existed on land, those were plants. Then bryophytes were the first plant to colonize the land. These are the summarized points. These points are very very important, of which we can summarize from the time scale, geological time scale. Okay, in case of plants. Now we're talking about plants right now. Middle Paleozoic era is also called as the age of algae. The late Paleozoic is also known as the age of ferns, right? And all the algal groups become established during the Cambrian period. So all the point is very very important. These are the summarized point, jotted point. So please you note these points. And the first plant that is xylophytes or xylophyton originated in Ordovician period. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ईरा इपोस तक है, पीरियड ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे पीरियड्स भी मेंशन किया है, कौन से पीरियड में हुआ है वो भी मेंशन किया मैंने, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो ये पॉइंट से पढ़ लेना इसको। द मराइन एल्गी वेर अबंडेंट इन ऑर्डोविशियन पीरियड। मराइन जो एल्गी थे वो सबसे ज्यादा कब मिलते थे, मिला हमें ऑर्डोविशियन पीरियड में। Then the earliest spore bearing plants were developed in Silurian period, ठीक है। सबसे पहला जो spore bearing plant था वो कब डेवलप हुआ, वो Silurian period में डेवलप हुआ। Then the origin of the vascular plants, that is gymnosperm, angiosperm, took place in this period, the same period, and it is also
दिस इज इट इज आल्सो द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ फर्न। उसी समय जिस समय जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डेवलप हुआ उसी समय फर्न्स भी डेवलप हुआ था, ठीक है। देन हर्बेशियस and arborescens lycopods or ferns evolved from Zosterophyllum of Paleozoic era। हमने डिस्कस भी किया है अभी थोड़ी देर पहले those points, right? Now the next is evolution and origin of animals। फिर से मैं पहले थोड़ा डिस्कस कर लूंगा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको, उसके बाद हम वापस चलेंगे इसमें आपके पॉइंट जो मैंने वहां पे मेंशन किया है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैं प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन दोस पॉइंट्स, सो यू लिसन केयरफुली एंड इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एज वेल, राइट। नाउ साइलोफाइटन इज द कॉमन एंसेस्टर्स फॉर हॉर्सटेल फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और हॉर्सटेल फर्न्स का कॉमन एंसेस्टर्स कौन है? साइलोफाइटन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Devonian, that is the earliest mosses of fern, ठीक है। नेक्स्ट Carboniferous, इस समय क्या हुआ था? Abundance of the tree ferns forming the cool forest and the first seed plants separated during the Carboniferous period। Then the Mesozoic Carboniferous era, Mesozoic era, उस समय क्या हुआ था? The Mesozoic era is also called as the age of Gymnosperm, ठीक है। मीजोजोइक एरा को हम क्या कह सकते हैं? एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। एंड पर्मियन is actually considered as during that time the origin, it is actually considered as the time period when the conifers were evolved or originated. Then Triassic, during the Triassic period abundance of ferns, cycads and conifers were there. So the cycads, conifers and ferns were in abundance during this time period. Jurassic, this is also called as the age of cycads because their abundance was maximum. Then origin of angiosperm will also take place in this period. Took place in this period. Next, the ferns and the gymnosperm began to decline during Cretaceous period. फर्न्स और जिम्नोस्पर्म का जो पॉपुलेशन है उसका जो डोमिनेंस है वो क्रिटेशियस पीरियड में डिक्रीज होने लग गया था। और उस समय क्या होना शुरू हो गया था? डोमिनेंस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट, टर्शियरी पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ एंजियोस्पर्म। टर्शियरी पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ एंजियोस्पर्म। क्वाटरनरी पीरियड इज सिमिलरली नोन एज द एज ऑफ हर्ब्स। क्वाटरनरी पीरियड को हम क्या कह सकते हैं? इट इज नोन एज एज ऑफ हर्ब्स। आपने पढ़ा होगा हर्ब्स, shrubs, trees. So I believe all of you know the difference between herbs, shrubs and trees, right? So the quaternary period was considered as the age of herbs, H-E-R-B-S, herbs, right? Now during Eocene period angiosperm dominance were increased. Eocene, E-O-C-E-N-E, Eocene. Then Oligocene period, rise of monocots. Rise of monocots happened during the Oligocene period. Then Miocene, M-I-O-C-E-N-E, Miocene period. Adaptive radiation of angiosperm can be seen in this time period. Adaptive radiation of angiosperm can be seen in Miocene, M-I-O-C-E-N-e. Then Pliocene, P-L-I-O-C-E-N-E, Pliocene. Adaptive radiation of flowering plants can be seen in this period. Then last one, Holocene, H-O-L-O-C-E-N-E, Holocene. Development and the rise of herbs. Decline of woody plants can be seen in this period. ठीक है, development and rise of herbs and decline of woody plant. Right? Fine. So that was the summarized points what you need to know apart from the things what we have discussed. Now we move on to the next part, that is origin and evolution of animals. Now this is very interesting and this is very important. We need to study in zoology. The thing is that the animals, they were actually these invertebrates, they have evolved around, you know, like we can say around these invertebrates evolved around 500 million years ago. Okay,
And I want to mention one thing to all of you before we'll continue, that wherever I have written in the point MYA, that means million years ago. इसका मतलब क्या है? Million years ago, MYA, right? So you please make a note of it. Now let us start. The origin of animal. See, as we discussed in the beginning that all the first cell which were actually appeared about 2000 million years ago, हमने शुरू में डिस्कस किया ना कि जो फर्स्ट जो सेल है, जो यूनिसेलुलर फर्स्ट लिविंग सेल है, वो लगभग 2000 मिलियन साल ईयर्स पहले धरती पे वो इवॉल्व हुआ था, मतलब ऑरिजिन हुआ था. उसमें से कुछ जो है सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लग गए, O2 बनाना, उन्होंने O2 बनाना शुरू कर दिया. इससे क्या हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगी. एंड that is that they used to do by the process of photosynthesis. That also we know. They have some special pigments called chlorophyll by which they capture the energy of the sun, solar energy, and they utilize it for the production of food in the form of glucose, right? Now slowly this single cell organism become multicellular life form and gradually evolve from less developed to more developed organism. तो ये जो सिंगल यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म है, धीरे धीरे ये मल्टीसेलुलर लाइफ फॉर्म बना. उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जो अलग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें डेवलप हो गया धीरे धीरे. सो लाइफ बिगिन इन वाटर. हम सबको पता है कि लाइफ जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? वो पानी में ओरिजिन हुआ. It began in water and slowly the life forms invaded the earth. उसके बाद धीरे धीरे लैंड में वो आने लगा, है ना? But the first organism, जो पहला ऑर्गेनिज्म था, the first organism actually that invade the earth were plants. अभी हमने पढ़ा ना, पहला जो ऑर्गेनिज्म है जो लैंड में आया, धरती पे आया पानी से, वो कौन था? कौन सा एनिमल था? वो था प्लांट. ठीक है. लेकिन हम ये भी है कि उसके जब जो यूनिसेलुलर एनिमल से जब मल्टीसेलुलर एनिमल बन रहे थे, तो उस समय जो लोअर एनिमल्स है, जैसे जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, वो भी डेवलप होना शुरू हो गए थे. कब होना शुरू हो गए थे? अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. द प्रोसेस इट्स एक्चुअली स्टार्टेड एंड दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, बट सम फॉर्म्स हैव बीन एक्सटिंक्ट. तो कुछ अभी है, अभी भी अर्थ में है, और कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जो अर्ली इन्वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ फिश. ठीक है. तो इवोल्यूशन ऑफ फिश पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे. उसके बाद एट द एंड आफ्टर सम टाइम आई विल गो टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. So that's why let us go back to the points first. Let us discuss the points one by one first. Then I will come back to at the end I will come back to the geological time scale. ठीक है. तो पहला क्या है कि invertebrates evolved around 500 million years ago, and the jawless fishes, that is the Agnatha. You have already studied in the animal kingdom what is Agnatha, what is Gnathostomata, right? So Agnatha means jawless. So the first fishes which were evolved, they were jawless, probably evolved around 350 million years ago, and there were some jaw-bearing fishes. और कुछ और भी थे जॉ बेयरिंग फिशेस थे which had strong and stout fins. Stout मतलब बहुत hard and strong fins थे उनके पास, which actually helped them to move on land as well. ठीक है. उनके पास जो strong fin थे with the stout जो कि strong and stout fins थे, with the help of that they use those fins for locomotion on the land as well. ठीक है. तो वो पानी से निकल के लैंड में मूव कर सकते थे by using of those fins. And these were a type of bony fishes. और ये क्या थे? They were type of bony fishes and they also evolved around 350 million years ago. तो उसी समय दो तरह के मतलब एक साथ दो तरह के फिश डेवलप हुआ. एक तो है जॉलेस हुआ, दूसरा हुआ विद जॉ. सो जो विद जॉ वाला था वो उसके जो फिन्स थे वो ज्यादा टफ थे, ज्यादा स्टाउट थे, तो वो यूज करते थे अपने फिन्स को लैंड में मूव करने के लिए. और जो आपके जॉलेस थे वो पानी में रहते थे. ठीक है. नाउ these fishes which are able to move on the land, they were called
लोबी फिन्स। उनका दूसरा एक क्या नाम था, उसको हम कहते थे लोबी फिन्स, राइट? दे वर आल्सो नोन एज लोबी फिन्स। यू कैन सी हियर दे आर आल्सो नोन एज लोबी फिन्स, और कॉमनली हम कहते थे क्वालोकैंथ। क्या कहते थे? क्वालोकैंथ, ठीक है? तो ये हम एक्चुअली इट वाज बिलीव दैट दीज लोबी फिन्स, क्वालोकैंथ और एग्जांपल है लैटिमेरिया। मैं आपको फोटो भी अभी दिखाऊंगा, लैटिमेरिया इज एग्जांपल। हम ये मान रहे थे कि लैटिमेरिया वर एक्सटिंक्टेड, हम ये मान रहे थे, लेकिन व्हाट हैपेंस इन 1938 इन साउथ अफ्रीका, the fish that is the latimeria which is belong to the this category of coelacanth or labifins, they caught and we found that that type of fish in South Africa, ठीक है? And then we can then we have understood and we have studied the fish and we concluded that these were the first lobe fins type of fishes which still existed on earth, ठीक है? अब ये मानते हैं ना, ये जो लोबी फिन्स है ना, they were the actually connecting link between the amphibians and fishes. They actually first time came out of the water and they have the capacity to live in water and also they have the capacity to live on land. So it was believed that they were the first the animals which were actually considered as a connecting link between the amphibians and fishes. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो पहला मतलब हमें इतना तो पता है कि लैटिमेरिया से शायद या लैटिमेरिया जैसे फिशेस से शायद फर्स्ट एम्फीबियंस इवॉल्व हुआ था, लेकिन जो एम्फीबियंस के फर्स्ट एम्फीबियंस का कोई फॉसिल हमारे पास नहीं है। सो दैट इज अ मिसिंग लिंक, ठीक है? हमारे पास कोई फर्स्ट एम्फीबियंस के कुछ भी जो फॉसिल्स फॉर्म या कुछ भी ऐसा हमारे पास, हमने अभी तक उसको खोज नहीं निकाल पाया, हमने अभी तक उसे खोज नहीं पाया, ठीक है? सो दिस labifins आर थॉट टू बी इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस, but the first amphibian is now extinct. तो first amphibians हमें अभी नहीं मिलते, हमें अभी तक मतलब वो extinct हो चुके हैं, तो हमें वो मिलते नहीं है और उनका कोई फॉसिल भी हमें नहीं मिला, ठीक है? So the amphibians are the organisms which can live on both land and water. The first amphibians have now become extinct and there are no specimen of these left with us, ठीक है? हमारे पास कोई भी specimen नहीं है. Now they evolve into the modern day amphibians. वो फर्स्ट एम्फीबियंस था, उससे हमें मॉडर्न डे एम्फीबियंस मिलता है जो कि इवॉल्व हुआ, जैसे कि फ्रॉग है, सैलामेंडर है, लेकिन फर्स्ट जो एम्फीबियंस था वो हमें नहीं मिला, उसका कोई फॉसिल भी हमें नहीं मिला। सो दैट वाज अ मिसिंग लिंक, ठीक है? नाउ द रेप्टाइल अभी रेप्टाइल किससे इवॉल्व हुआ? रेप्टाइल्स बेसिकली दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द एम्फीबियंस ओनली, पर द डिफरेंस देखो, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, जो एम्फीबियंस के एग्स हैं दे वर नॉट शेल्ड बट रेप्टाइल्स एग्स वर शेल्ड। एम्फीबियंस का जो एग है वो सन में ड्राई हो सकता है, लेकिन रेप्टाइल्स का एग सन में ड्राई नहीं होगा बिकॉज दे हैव अ थिक शेल, राइट? एंड द एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स, दैट वाज प्रूव्ड ड्यूरिंग दैट अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, many of which have become extinct. बहुत सारे जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो इवॉल्व हुए उसमें से बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एग्जांपल ले लेते हैं डायनासोरस, ठीक है? या और उनके जो मॉडर्न एंसेस्टर्स हैं, तो डायनासोरस तो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन मॉडर्न एंसेस्टर जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं वो कौन है? रेप्टाइल्स के, जो कि एम्फीबियंस से डेवलप हुए, जैसे टर्टल्स है, टॉर्टॉइस है, क्रोकोडाइल्स है, दे आर स्टिल लिविंग ऑन अर्थ, राइट? देन एज वी नो दैट द रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट ट्रू land inhabiting animals about probably 200 million years ago. So the first reptiles were the first true land inhabiting animals. देखो एम्फीबियंस क्या थे? एम्फीबियंस पानी में भी रहते थे, लैंड में भी रहते थे, लेकिन रेप्टाइल जो था वो फर्स्ट एनिमल था जो कि सिर्फ लैंड में ही रहता था. सो दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड इनहैबिटिंग एनिमल्स. और वो कब हुआ? अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो. सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर. अब इनमें से कुछ रेप्टाइल्स है ना वो वापस पानी में रहना शुरू कर दिए और बाद में they have slowly because they have started to live inside the water, they have evolved like fish like reptiles. ठीक है, इसीलिए वो क्या हो गया ना, फिश के जैसे फिश लाइक रेप्टाइल्स बन गए. एग्जांपल्स देखोगे तो इक्थियोसॉरस जो थे they were the fish like reptiles, फिश के जैसे दिखते थे, फिश के जैसे वो रहते थे. Now at that time the dominating land reptiles were dinosaurs. उस समय मतलब जब ये रेप्टाइल्स जब फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुए थे शुरू में, उस समय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डायनासोरस जो थे वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग
रेप्टाइल्स थे ऑन द प्लैनेट अर्थ और लैंड में। लैंड में जितने भी एनिमल थे, सबसे डोमिनेटिंग कौन था? डायनासोरस था, रेप्टाइल्स में। और जो डायनासोरस थे ना, उसके जो बिगेस्ट डायनासोरस हमें अभी तक जो फॉसिल्स मिला है, हमने अभी तक स्टडी किया है, वो इट वाज अबाउट 20 feet in height. Can you imagine how big it is? It was actually. And the name of that particular dinosaurus was uh, Tyrannosaurus. Tyrannosaurus Rex. That was the name of the dinosaurus. And they had huge, fearsome, ड्रैगर-like teeth. उनके जो दांत थे, आपने जुरासिक पार्क पे भी देखा होगा मूवी में कि their teeth were fearsome, ड्रैगर-like. ठीक है, जैसे वो आपने देखा होगा ना कि we are doing dredging with some type of instrument and some, like the vehicles are there which dig, used for the digging. बिल्कुल उसके जो टीथ होते हैं, उसके जो मेन पार्ट होता है जिससे कि डिगिंग होता है, बिल्कुल वैसा उसी तरह के दांत उनके थे, डैगर लाइक। नाउ तो डायनासोर जो है ना, ये अचानक से सडनली दे वर डिसअपियर अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो। और इसके जो रीजंस है, इट इज टिल नाउ इट इज नॉट वेरी क्लियर. देयर वर मेनी theories it has been given, but till now it is not clear about why they have and how they have actually vanished. ठीक है, कुछ मानते हैं साइंटिस्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया था, इसके लिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ मानते हैं मेटेरॉइड्स का अटैक हो गया था, मेटेरॉइड्स गिर गया था हमारी धरती पे, इसके लिए हो गया होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हो गया होगा, बट वी डोंट नो व्हाट वाज द रियल रीजन प्रॉपर्ली, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ मैमल। ठीक है, तो जो आपके रेप्टाइल्स है, डायनासोरस, वो कब खत्म हो गए धरती से, सडनली कब चले गए? ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो। 65 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोरस जो है वो सडनली डिसअपियर हो गए। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। देखो, द मैमल जो है ना, दे इवॉल्व फ्रॉम बेसिकली रेप्टाइल्स एंड फर्स्ट मैमल्स वर स्मॉल साइज लाइक श्रूज। पहला जो मैमल्स जो मतलब देखो, मैमल्स जो इवॉल्व हुआ है वो पहला तो रेप्टाइल से हुआ था, और जो शुरू के मैमल्स थे वो साइज में बहुत छोटे होते थे। ठीक है, एंड दे बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ एंड देयर फॉसिल्स वेर स्मॉल साइज्ड। तो पहले के जो हमें मैमल्स मिले हैं, जिसका फॉसिल्स हमें मिले फर्स्ट मैमल्स का, जो उस समय जो इवॉल्व हुआ था रेप्टाइल से, वो बहुत छोटे थे, उनका साइज बहुत छोटा था। एंड दे हैव ऑल एक्सटिंक्ट, दे आर नॉट सर्वाइविंग राइट नाउ ऑन प्लैनेट अर्थ। अभी वो सर्वाइव नहीं करते, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, and after the extinction of the major land reptiles, that is the dinosaurs, फिर मैमल जब इवॉल्व हुआ तो मैमल जो थे ना वो डोमिनेट करने लगे अर्थ को। ठीक है, तो पहले डायनासोरस मतलब रेप्टाइल्स डोमिनेटिंग थे अर्थ में, उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या डोमिनेट करने लगे अर्थ में, कौन सबसे ज्यादा बढ़ने लग गया? मैमल्स। ठीक है, इट इज सपोज दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स, देखिए आपने पढ़ा होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सारा ये जो कॉन्टिनेंट था, ये सब पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं इट वाज अ सिंगल लैंड मास, दैट वाज कॉल्ड पैंजिया। एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ऑल द कंटिनेंट्स दे हैव सेपरेटेड बाय ह्यूज ओशंस। ठीक है, अब क्या हुआ उससे कि बिकॉज ऑफ दैट, सो बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, when South America joined the North America, the mammals of the South America that resembled horse, hippopotamus, then bear, rabbit, etc., were overridden by the animals of North America. तो नॉर्थ अमेरिका में जो पहले से एनिमल्स थे उसके ऊपर ये डोमिनेट होने करने लग गए, जो साउथ अमेरिका से जो मैमल्स आए थे वो, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एंड धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लग गई। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। Now one more effect of the continental drift, दूसरा एक इफेक्ट जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, वो क्या था कि जैसे हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या है ना, वी कैन सी दैट इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स ये बिल्कुल अलग हो गया। एंड जो आपके पाउच्ड मैमल्स है, जिसको हम मार्सुपियल्स कहते हैं, they were prevented from facing any threat or competition from the mammals of other continents
अब ये जो मार्सुपियल्स थे ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा अलग हो गया, तो इनको कोई कंपटीशन में नहीं मिला, इनको कोई भी जो है थ्रेट नहीं मिला दूसरे मैमल से, दूसरे एनिमल से, इसीलिए ये बहुत ही आराम से यहाँ पे सर्वाइव किए, डाइवर्सिफाइड हो गए मार्सुपियल जो ऑस्ट्रेलिया में थे, और वो एंडेमिक वहां पे हो गए और बहुत ही अच्छे से उन्होंने इवॉल्व किया और वो सर्वाइव कर गए। ठीक है। Now some mammals live wholly in water like whale, dolphins. कुछ मैमल जो है ना वो पानी में रहते हैं, कंप्लीटली रहने लग गए थे शुरू से ही। जैसे आप जानते हो वैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, सील्स है, सी काउस है, जिसको हम सी काउ का दूसरा नाम है डुगोंग। आपको पता है इंडिया में भी डुगोंग मिलता है, और इंडिया में अगर डुगोंग कहाँ पे मिलेगा, वी कैन फाइंड डुगोंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। सो द डुगोंग आर आल्सो नोन एज सी काउ। सी काउ को कहते हैं बिकॉज दे आर ईटिंग, दे आर लिविंग ऑन, दे आर फीडिंग ऑन द सी ग्रासेस। ठीक है। समुद्र में जो सी ग्रासेस मिलता है उससे से एल्गीज जो है उसको खा के वो जिंदा रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सी काउ। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड डॉग एटसेट्रा where actually these are the special types of evolution। तो हमने हॉर्स के बारे में, हॉर्स का एवोल्यूशन हमने पहले पढ़ा है, और डॉग, एलिफेंट ये सब हमें पढ़ना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी कैन अवॉइड दैट एज वेल, दैट वन। नाउ पेरिकोसर्स एंड थेराप्सिड्स were the synapsids which have become extinct from earth। ठीक है। and these therapsids were the most advanced synapsids that include the ancestors of mammals। ठीक है। तो ये जो therapsids थे, they were the most advanced synapsid, and from this synapsids actually they were the actually ancestors from where the mammals actually evolved। ठीक है। तो ये therapsids, synapsids क्या मैं कह रहा हूं ये आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में और आ जाएगा जब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा तब। ठीक है। ये रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द थिकोडोन एंड सोरैप्सिड। ठीक है। सो द थिकोडोन दे गॉट एक्सटिंक्ट बट दे हैव एक्चुअली दे गेव राइज टू मेनी एनिमल्स। ठीक है। थिकोडोन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है अभी, लेकिन उसमें से हमें आज जो है बहुत तरह के जो दूसरे तरह के एनिमल्स है वो इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। जैसे क्या क्या है, जैसे क्रोकोडाइल है, डायनासोरस है, मॉडर्न बर्ड्स है, ये सारे थिकोडोन से इवॉल्व हुआ है। ठीक है। और जो सोरैप्सिड्स है, these were the ancestors of turtles, lizards, snakes and turtles, all reptiles। तो ज्यादातर जो रेप्टाइल्स है वो सोरैप्सिड से डेवलप हुआ है। ठीक है। तो थिकोडेन, सोरैप्सिड, then synapsids, these are very important groups of reptiles from where most of the आपके जितने भी आपके मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब इसी से सोरैप्सिड्स एंड साइनैप्सिड्स इन्हीं से इवॉल्व हुआ है। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा जो टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस, उसके पहले मैं आपको लैटिमेरिया को दिखाना चाहूंगा। दिस इज द लैटिमेरिया जिसको हमने अभी पढ़ा, जिससे कि जिसको हम लोबीफिन्स भी कहते हैं, दोस फिशेस which evolve along with the jawless fishes, that is the agnatha। These are the fishes which jaws and they have, आप देख सकते हो कि इनके जो fins है, they are stout means इनके जो spines है ना, ये बहुत strong होते थे, ये भी और muscles यहाँ पे बहुत strong होते थे। आप देख सकते हो the muscles are coming up to the bone part is coming up to this, and this fins are very strong and they use the fins to move in the land as well। तो ये था latimeria। This was the first fish with jaw, fish with jaw, from where the amphibians might have been evolved। ठीक है। So that was the latimeria or lobifin, और जिसको हम coelocants भी कहते हैं। Now let us discuss this table right now। फर्स्ट है रेप्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि रेप्टाइल से ही ज्यादातर जो भी बर्ड्स है, लिजर्ड्स है, जो आपके अदर रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, वो सब इवॉल्व हुए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। ठीक है। इसीलिए हम इसको बहुत डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज कार्बोनिफेरस, दिस इज पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ये सारे आपके पीरियड्स, और यहाँ पे आपको जो ईयर्स दिया हुआ है, देयर इज मिलियन ईयर्स, 350, 300, 250, 200, राइट। सो लेट अस डिस्कस। फर्स्ट अर्ली रेप्टाइल्स, it was developed before the 350 million years ago,
ठीक है। दिस अर्ली रेप्टाइल्स दे वर एक्सटिंक्ट। उसमें से क्या है ना, आप देखोगे वी कैन फाइंड द ब्रांचेस। एक ब्रांच है जो साइनेप्सिड्स बना ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस टाइम, तो उस समय साइनेप्सिड डेवलप हुआ था अर्ली रेप्टाइल से, ठीक है। और क्या डेवलप हुआ था, सौराप्सिड। दोनों डेवलप, दो चीज डेवलप थी। पहले जो हुआ था वो साइनेप्सिड डेवलप हुआ था वो 300 मिलियन ईयर्स अगो, दैट इज योर कार्बोनिफेरस पीरियड में। दूसरा जो आप सौराप्सिड देख सकते हो वो मिडिल जो पीरियड है पर्मियम, उसमें डेवलप हुआ था। और सोरापसिड जो है आप देख सकते हो दे हैव दे एक्चुअली इवॉल्व इनटू पिलाइकोसॉरस, ठीक है, जो कि बाद में एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद पिलाइकोसॉरस से हम देख सकते हैं पिलाइकोसॉरस जो है वो भी पर्मियम के अर्ली स्टेज में, अर्ली टाइम पे हुआ था और वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो सोरापसिड से जो थेरापसिड जो था वो भी जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो गया था कब, जुरासिक पीरियड के जस्ट बिफोर द मिडिल टाइम ऑफ द जुरासिक पीरियड, राइट। और अगर आप सोरापसिड को देखोगे तो वो डेवलप हुआ था पर्मियम के मिडिल में, और उसमें से आप देखोगे तो ये सोरापसिड से क्या बना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ बहुत सारा एक चीज समझना है आपको। साइनेप्सिड से हमें ये तो पता है कि मैमल साइनेप्सिड से डेवलप हुआ, लेकिन बीच में हमें दो फॉसिल्स मिले हैं जो कि थेराप्सिड्स का है और जो पिलाइकोसोरस का है। ये दोनों ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और बीच में हमें कोई भी कनेक्टिंग लिंक नहीं मिला, देयर आर मिसिंग लिंक, बट हमें इतना पता है कि मैमल जो है वो इसी से डेवलप हुआ था, साइनेप्सिड से, राइट। और सोरापसिड से आपको देखो पहला आपको क्या मिलेगा, जो मॉडर्न डे टर्टल्स है वो भी सोरापसिड से निकला है। उसके बाद जो लिजर्ड्स है वो भी सोरापसिड से बना है। उसके बाद देखो और सोरापसिड से और भी कितने अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग टाइम में, जैसे थिकोडोन कब डेवलप हुआ था, ड्यूरिंग द ट्रासिक पीरियड, मिडिल ऑफ द ट्रासिक पीरियड। उसके बाद थिकोडोन से आप देख सकते हो क्रोकोडाइल्स बना है। उसके बाद ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ट्रासिक पीरियड द थिकोडोन दे हैव diversified, and at the end of the Jurassic period again they have diversified, and the dinosaurs they have evolved from the Thecodon, and they got extinct at the middle in the middle of the tertiary period। tertiary period के मिडिल में वो एक्सटेंड भी हो गए, और थिकोडोन जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया, क्या बन गया, बर्ड्स बन गया, ठीक है। वैसे आप साइरोप्सिड देखोगे तो वो इवॉल्व होकर क्या बन गया, टॉर्टस, ये बन गया, टॉर्टस बन गया। फिर स्नेक्स इवॉल्व होना शुरू हो गया कब से, जुरासिक पीरियड के मिडिल से। अच्छा, क्रोकोडाइल का इवॉल्व होना शुरू हो गया मिडिल ऑफ द ट्रासिक पीरियड, ठीक है। Sorry, not Triassic period. It started from the synapsid. It gets diversified, and then it started to develop from the middle of the Triassic period, and slowly they have finally the modern day crocodiles what we can see. So this is a time scale what we need to understand the different time period where when all the different types of animals have इवॉल्व। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड एंड आई थिंक you have already taken the points as well. So these are all the points. You can pause and you can take the points if you want to take the points what I have discussed. So this was the last page, so you can take all your points what I have discussed, right? So these were the points. Next, the last part we need to discuss, that is your human evolution. So human evolution जो है, this is very important. Maybe this lecture will be little bit extended, but I think we need to finish it today only. So human evolution हम discuss करेंगे, और human evolution में जो बहुत जरूरी है तो हमें ये समझना है। देखिए, हम जो evolution के बारे में पढ़ते हैं किसी भी, अभी आपने देखा होगा, मैं अभी प्लांट्स के बारे में आपसे बात किया, उसके बाद मैंने एनिमल्स के बारे में भी बात किया, इवोल्यूशन के बारे में बात किया ना। तो उसमें आप देखो मैं बार बार क्या कह रहा था, फॉसिल्स के बारे में कह रहा था। तो हम जो भी स्टडी करते हैं ना इवोल्यूशन के बारे में, हमने जो भी अभी तक समझा है, इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स। हमें जो फॉसिल्स मिला हमने उसको स्टडी किया, हमने उसको देखा ये कौन से टाइम पीरियड से है, तो हमने उसको एक सीक्वेंस में रखा और कंपैरेटिव स्टडी किया। हमने पता किया कि हमने ये प्रेडिक्शन किया, हमने ये माना कि शायद जो एनिमल्स है वो इसी तरह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दे हैव इवॉल्व, ठीक है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का तो हम अभी जो भी पढ़ने वाले हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम द ओल्डेस्ट फॉसिल्स व्हाट वी हैव गॉट, and we will discuss, and at the end we'll discuss the latest fossils or the latest human being that we are, the modern man, and we will compare everything during this discussion, right? It may be little quick, be focused, right? First
हमें क्या है, फर्स्ट जो हमें फॉसिल मिला था, वो जो दो फॉसिल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ड्रायोपिथेकस, दूसरा है रामापिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द लाइक कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ एप्स एंड ह्यूमन। ड्रायोपिथेकस जो है, ये जो है फॉसिल्स है, इसको हम मानते हैं जो हमें मिला था, ये जो स्पीसीज है, इसे आप मानते हैं कि इसी से जो ह्यूमन है वो भी इवॉल्व हुए थे, एप्स है वो भी, एप्स और ह्यूमन दोनों जो है ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुए थे। ठीक है, और ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दोनों ही ऑलमोस्ट एक सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था, दैट इज ऑलमोस्ट 15 मिलियन ईयर्स अगो, एंड दे हैव लिटिल डिफरेंसेस। ठीक है, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंसेस है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, जैसे कि जो ड्रायोपिथेकस है इट वाज एप लाइक, एंड रामापिथेकस जो था वो था ह्यूमन लाइक। क्यों ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखो, द फॉसिल्स ऑफ द ड्रायोपिथेकस व्हिच वाज डिस्कवर्ड, वो हमें कहां मिला था? इट वाज डिस्कवर्ड इन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, इन इंडिया। और हमें जो डायपिथेकस मिला था उसमें हमें क्या मिला? उनका बॉडी जो था वो बिल्कुल हेयरी था, बहुत सारे बाल थे, जस्ट लाइक द चिंपैंजी और गोरिल्ला, एंड दे वर मोर लाइक द एप, दे वर मोर एप लाइक, एंड दे वॉक लाइक गोरिल्ला। मतलब उनका जो पोस्चर था वो इरेक्ट पोस्चर नहीं था। इरेक्ट पोस्चर मतलब सीधा, जैसे हम चलते हैं या लगभग सीधा, तो वैसा नहीं था वो, जैसे गोरिल्ला झुक के चलते हैं बिल्कुल वैसा उनका पोस्चर था। उनके फॉसिल से हमें ये पता चला। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर वेरी क्लोज टू द एप्स, ठीक है, नॉट क्लोज टू द ह्यूमन। बट जो दूसरा फॉसिल जो है रामापिथेकस, वो हमें जो मिला, जो दूसरा फॉसिल है, ड्यूरिंग द सेम टाइम वी गॉट द रामापिथेकस आल्सो, एंड दैट फॉसिल वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द शिवालिक हिल्स, एंड दे हैव इरेक्ट पोस्चर जस्ट लाइक ह्यूमन। ठीक है, इनका जो पोस्चर था वो इरेक्ट था, सीधा था, वो चिंपैंजी या गोरिल्ला के जैसा, एप के जैसा नहीं था। इसीलिए हम रामापिथेकस को मानते हैं कि वो शायद ह्यूमन एंसेस्टर था, और डायपिथेकस जो था वो कॉमन एंसेस्टर था ह्यूमन और एप्स का, दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये हमें डायपिथेकस और जो रामापिथेकस हमें मिला था, इनका जो कैनाइन्स था ये बहुत छोटा था। ठीक है, तो इनके जो कैनाइन्स थे ये ह्यूमन लाइक थे, छोटे थे, जस्ट लाइक ह्यूमन, हमारे जैसा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉसिल जो हमें मिला वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें कहां से मिला? ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें मिला था अफ्रीका से, और इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम है, ये हमें मिला था ईस्ट अफ्रीका से। और हमें क्या पता चला कि ये जो है सरवाइव करते थे, ये कहां पे इवॉल्व हुए थे, कहां पे रहते थे? ईस्ट अफ्रीका में। इसीलिए ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम हमने क्या रख दिया? इसका नाम है, कॉमनली हम इसे कहते हैं अफ्रीकन एप मैन। इसे आप क्या कहते हैं? अफ्रीकन एप मैन। ठीक है, और ये जो फॉसिल है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रेमंड डॉट। ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, वो जिन्होंने डिस्कवर किया था इस फॉसिल को, उनका नाम था रेमंड डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे यूज द स्टोन वेपन्स। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ना, ये थोड़ा इवॉल्व, ये दे वर लिटिल बिट इवॉल्व फ्रॉम कंपेयर्ड टू द लास्ट वन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, रामापिथेकस एंड डायपिथेकस। Now what we have observed that they used some sophisticated stone weapons। जो weapons जो बनाते, मान लीजिए जो stone था वो शार्प करके किसी डंडे के सामने, या हम जिसके किसी स्टिक के सामने, किसी ट्री ब्रांचेस के सामने, या किसी वो जो वुडन प्लेटफॉर्म में उसको वो अटैच करके, उसको अच्छे से टाई करके उसको यूज करते थे हंटिंग के लिए। दैट मींस दे वर ऑल हंटर्स, राइट। उन्होंने हंटिंग, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय से इंसान जो है हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, हंटिंग करना चालू कर दिया था। ठीक है, और अभी बात करेंगे उनकी क्रैनियल कैपेसिटी का, मतलब ब्रेन जो कितना साइज का ब्रेन था। ब्रेन जो था उनका, जो क्रैनियल कैपेसिटी था, इट वाज अबाउट 600 सीसी। ठीक है, और हमें क्या पता चला इनके बारे में कि दे वर फ्रूट ईटर्स, ये फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, और दे वर बाइपेडल, दे हैव बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन मतलब दो पैर में चलने वाले, जैसे हम हैं, इंसान क्या है? बाइपेडल है, हम पैर में चलते हैं, दो पैरों के ऊपर चलने वाले जीव है ना। तो वो भी दो पैरों के ऊपर अच्छे से चल पाते थे। लेकिन इसके पहले जो हमने फॉसिल्स के बारे में डिस्कस किया, जो एंसेस्टर्स के बारे में डिस्कस किया, वो बहुत अच्छे से अपने दो पैर पे चल नहीं पाते थे। दो दे हैव सम इरेक्ट पोस्चर लाइक ह्यूमन, बट दे वर नॉट प्रॉपर्ली एबल टू वॉक, जस्ट दे आर नॉट एबल टू हैव बाइपेडल लोकोमोशन, राइट। और ये बाइपेडल लोकोमोशन पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज दे हैड लंबर कार। ठीक है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आपको कि जो लोकोमोशन, आपने पढ़ा भी होगा, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो कर्व्स दिखते हैं, लंबर जो कर्व होता है, लंबर रीजन में जो कर्व होता है,
ये अगर हमें मिला, अगर तो हमें ये हमारे बॉडी, हमारे किसी हमारे स्केलेटन में अगर ये है, तो ये क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पर्टिकुलर एनिमल है ये आपका बाइपेडल है, ये सीधा चल सकता है, ठीक है। नाउ ह्यूमन, they have this Australopithecus, they have human like teeth, इंसान के जैसे टीथ, हमारे मॉडर्न ह्यूमन के जैसे टीथ है, बिल्कुल वैसे टीथ हमें इनमें भी मिला था, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हमें दो और भी फॉसिल मिला है, दो और फॉसिल मिला है, उनका नाम क्या है, एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोएसी। ये दो हमें एक्स्ट्रा जो है फॉसिल्स और भी मिला है, हमने स्टडी किया है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जो फॉसिल हमें मिला था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज योर होमो हेबिलिस। तो नेक्स्ट जो आपका ह्यूमन एवोल्यूशन में जो फर्दर इवॉल्व जो हमें स्पीसीज मिला था, वो था होमो हेबिलिस, जो कि है, हम उसे कॉमनली कहते हैं हैंडी मैन, ठीक है। कॉमनली हम क्या कहते हैं इसे, हैंडी मैन, ठीक है। और ये फॉसिल जो डिस्कवर किया था होमो हेबिलिस का, वो किसने किया था, लेकी वाज अ आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड this Homo habilis fossil for the first time, ठीक है। And they were actually non-meat eater, ठीक है। तो जो Homo habilis थे, they were the non-meat eater, ठीक है। So Homo habilis, they were discovered by Leakey. It was we found them almost 1.2 to 1.5 their height was almost 1.2 to 1.5 मीटर। कितना हाइट था इनका, 1.2 to 1.5 मीटर। और cranial capacity की अगर बात करोगे तो almost it was 650 to 800 cc they have the cranial capacity, and they probably not ate meat। तो यहाँ पे लिख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे गलती है। So they were non-meat है, eat नहीं है, non-meat eater। Probably हम ये मानते हैं शायद उन्होंने मीट, होमो हेबिलिस शायद मीट खाना, उस समय मीट खाना शायद इंसान ने शुरू नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे होमो इरेक्टस। नेक्स्ट जो है इवोल्यूशन में हमारा नेक्स्ट जो फॉसिल हमें मिला था, नेक्स्ट जो स्पीसीज है वो है होमो इरेक्टस। नाउ इट इज बिलीव, कि हम मानते हैं दैट दे हैव इवॉल्व्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, इसके पहले ये उस समय ये इवॉल्व हुए थे, और इनका जो पोस्चर था वो भी इरेक्ट था, एंड दे आर द मोस्ट रीसेंट फॉसिल व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1891। ये सबसे रिसेंट फॉसिल्स में से है जो कि 1891 में डिस्कवर हुआ था, और इसका जो क्रैनियम कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 900 सीसी का था। क्या था इसका कैपेसिटी, ऑलमोस्ट 900 सीसी। और ये शायद होमो इरेक्टस जो है, ये शायद दे यूज्ड टू ईट मीट, एंड दे हैव यू नो लाइक सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस एज वेल। तो सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस मतलब आंख, जो हमारे जो आईज है उसको वो सेटल होने के लिए प्रॉपर्ली जो ऑर्बिट का जो शेप होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपर था, जो कि ऑलमोस्ट हमारे प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग के साथ, प्रेजेंट मॉडर्न मैन के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है। So after the Homo erectus, we found 2 more fossils. Homo erectus के बाद हमें 2 और फॉसिल मिले, दोनों का नाम है Homo erectus, जिसको हम कॉमनली कहते हैं जावा एप मैन, क्योंकि ये जावा में मिला था इसलिए हम इसका नाम क्या रख दिए, जावा एप मैन। दूसरा है Homo erectus पेकिनिस, ये इसको हम कॉमनली पेकिंग मैन में कहते हैं, कि ये पेकिंग बोल के एक जगह है चाइना में, वहां पे मिला था। और ये जो पेकिंग मैन है, इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1075 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट जो स्पीसीज हमें मिला, जो कि नेक्स्ट एडवांस स्पीसीज था, फिफ्थ वन, दैट इज योर निएंडरथल मैन। सो दे वर द फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन। निएंडरथल मैन जो है उसको हम फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन मानते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन है, इनका जो फेस था वो प्रोनैथस, क्या था फेस, क्या था, प्रोनैथस फेस था, स्लाइटली प्रोनैथस था, ठीक है। तो वो प्रोनैथस का मतलब क्या होता है, यहां थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैं जब थोड़ा अभी डायग्राम दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा आपको। मान लो कि ये ह्यूमन फेस है, ठीक है। तो जब इंसान शुरू में
थोड़ा ये मेंढक जैसा हो गया, सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस यहाँ ऐसे समझते हैं इसको कि जो ह्यूमन फेस था वो पहले प्रोट्रूडेड था ऐसा, ठीक है, और धीरे धीरे जैसा अभी मॉडर्न मैन और मैन में अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो फेस है वो ऑलमोस्ट एक एक लाइन में है, परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर लाइन में है। तो अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में हमारा जो अभी प्रेजेंट जो हमारा फेस है इसे हम कहते हैं प्रोग्नैथस, ठीक है। प्रोग्नैथस मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं सीधा अपने फेस के बराबर, ठीक है, वैसा अगर है तो हम उसे कहते हैं प्रोग्नैथस। तो ये जो निएंडरथल मैन था इनमें प्रोग्नैथस जो फेस वो तो कंप्लीट नहीं था लेकिन इट वाज स्लाइटली प्रोग्नैथस, मतलब फेस था उतना प्रोट्रूडेड नहीं था, ठीक है। सो और ये डेवलप हुए थे, कब हुए थे, ये भी हमें ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन ईयर्स पहले सेंट्रल एशिया में हमें ये जो है इवॉल्व हुआ था, ये हमें मिला है। सेंट्रल एशिया में ये रहते थे एंड दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्स यूज करते थे, ठीक है। एंड दे यूज टू बरी द डेड, ठीक है, जो डेड बॉडी होते थे जो मर जाते थे उनको वो दफनाना या जिसको बोलते हैं ना मिट्टी के अंदर बरी करना, ये भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो द निएंडरथल मैन वाज कंपैरेटिवली मोर इंटेलिजेंट, राइट, मोर सिविलाइज्ड और मोर नियर टू मैन, modern man, right? So they were actually use hides to protect their body and they used to they buried the dead body as well. और उनका जो मैंडिबल था, they had a very strong mandible, ठीक है, उनका जो मैंडिबल था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि suppose that means they used to chew a lot, that's why their mandible was very strong. And the cranial capacity was increased. अब देखो पिछले वाले हमने क्या देखा, 900 सीसी का था, अब इसमें कितना है, it is almost 1400 सीसी, ठीक है, तो काफी बड़ा है cranial capacity. नेक्स्ट है होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस जो है दिस इज द मॉडर्न मैन, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न मैन। और होमो सैपियंस जो है दे हैव इवॉल्वड अराउंड 10,000 to 70,000 years ago. होमो सैपियंस जो है बहुत ही लेटेस्ट है, ये बिल्कुल बहुत ही रिसेंट टाइम में ये डेवलप हुआ है, दैट इज ओनली अबाउट 10,000 to 70,000 years ago, and they evolved in African region. ये कहाँ पे इवॉल्व हुआ था, it's they have evolved in African region and there are two subtypes. इसके दो subtypes हमें मिला है, एक है Homo sapiens fossilis, दूसरा है Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens जो है वो मॉडर्न मैन है, Homo sapiens fossilis जो है वो है आपका थोड़ा मतलब इससे पुराना, इससे थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं इसके पहले वाला स्पीसीज जो था वो था होमो सैपियंस फोसिलिस, ठीक है। अभी जो लास्ट पार्ट है मॉडर्न मैन का वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, होमो सैपियंस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला है होमो सैपियंस फोसिलिस, जिसको हम कहते हैं क्रो-मैग्नन, कॉमन नेम क्या है इसका, क्रो-मैग्नन, ठीक है। एंड दे वर टॉल एंड हैड इरेक्ट पोस्चर, इनका जो पोस्चर था ये बहुत टॉल थे और इनका जो हाइट था ये भी काफी लंबा था और इनका पोस्चर जो था वो इरेक्ट पोस्चर था। और इनका जो क्रैनियम कैपेसिटी था वो कितना था, 1660 सीसी, कितना था, 1616 सीसी। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइंटिस्ट इसमें डिवाइड करते हैं, अभी तक ये हमें नहीं पता चला कि इनका जो ब्रेन कैपेसिटी है वो मॉडर्न मैन से ज्यादा है। हमारा ब्रेन कैपेसिटी इतना नहीं है, हमारा ऑलमोस्ट 1450 सीसी के आसपास है, 1500 सीसी, लेकिन जो क्रो-मैग्नन है उनका ब्रेन कैपेसिटी 1660 सीसी था, मतलब बहुत बड़ा ब्रेन था। फिर भी वो एक्सटिंक्ट कैसे हो गए इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, वी डोंट नो। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द क्रो-मैग्नन, दे वर केव ड्वेलर्स, दे वर कार्निवोर्स एंड they use very sophisticated tools. जो अभी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो केव्स में ड्राइंग बनाते थे, केव्स में रहते थे। So these Cro-Magnons were those ancestors, ठीक है। Now the last is Homo sapiens or Homo sapiens sapiens, that is a modern man. It is believed that they domesticated the animal and started agriculture about 10,000 years ago. Homo sapiens sapiens जो modern man जो हम हैं, हमने जो एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, इसको हमने शायद स्टार्ट किया था आज से 10,000 साल पहले, ठीक है। और बेसिकली होमो सैपियंस को हम बेसिकली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल जो
बेसिक कैटेगरीज है, और भी फर्दर कैटेगरीज में आप पढ़ सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में और भी डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज में। जैसे कि निग्रोइड जो अफ्रीका में रहते हैं उसे निग्रोइड्स कहते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एथनिक, एथनिक मतलब जिस जगह पे जो स्पीसीज डेवलप हुआ है उसके हिसाब से हमने उसको एथनिक ग्रुप कहते हैं उनको। वो जैसे निग्रोइड्स है, अफ्रीका में जो इंसान रहते हैं, जो होमो सैपियंस की वैरायटी रहते हैं, एथनिक ग्रुप रहते हैं, उसे हम कहते हैं निग्रोइड्स। जो इंग्लैंड, इटली, ये सब इलाके में जो रहते हैं उसे हम कहते हैं कॉकेशियंस, ठीक है, कॉकेशियंस कहते हैं उसे। और जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे जो रहते हैं उसे हम कहते हैं ईस्टर्न्स, एंड मंगोलिया में जो रहते हैं उसे हम कहते हैं मंगोलॉइड्स, ठीक है। सो दिस वेर ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ human ancestors or fossils what we have got, and from where we actually try to understand the evolution of humans. So अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, there are different types of fossils and their skull and the figure of the face or the head part. Okay, हमने ये थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट किया है साइंटिस्ट ने, तो हम ये पता कर सकते हैं इससे कि वो दिखते कैसे थे। तो पहला आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सो दे हैव मोस्ट प्रोट्रूडेड द स्कल, द माउथ इज आल्सो मोस्ट प्रोट्रूडेड। उसके बाद आप देख सकते हो होमो हेबिलिस, उनका माउथ थोड़ा कम प्रोट्रूडेड है। देन उसके बाद होमो इरेक्टस, उसका और थोड़ा कम है, बेटर है आपकी होमो हेबिलिस से। उसके बाद क्रेनियम कैपेसिटी आप देख सकते हो वो ज्यादा है होमो इरेक्टस का होमो हेबिलिस से। उसके बाद आप देख सकते हो निएंडरथल मैन, ठीक है, इनका जो माउथ है वो ऑलमोस्ट प्रोग्नैथस है, मतलब मैंने आपको बिल्कुल समझा प्रोग्नैथस माउथ क्या होता है, ठीक है। और फाइनली व्हाट वी कैन सी द क्रो-मैग्नन मैन व्हिच इज द मोस्ट रीसेंट वन, द मोस्ट क्लोजेस्ट और सिमिलर, मोस्ट क्लोजेस्ट एंड मोस्ट रिलेटेड फॉसिल और स्पीसीज टू द मॉडर्न मैन, ठीक है। तो उसमें अगर आप, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप फेस के सीधे आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे, जैसे यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, so we can draw the straight line, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो it will cross the jaw, ठीक है ना, कंप्लीटली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, इसको बोलते हैं प्रोनेथस, ठीक है। तो ये है प्रोनेथस टाइप, ठीक है, दिस इज द प्रोनेथस टाइप, मॉडर्न मैन में ऐसा होता है, राइट। सो बिफोर आई विल क्लोज, आई विल जस्ट show you a table or a flow chart which will help you to understand the evolution of man in a flow chart. So आप देख सकते हो 15 million years ago Diapithecus, they were the apes. उसके बाद हमें क्या मिला 14 to 15 million years ago, उसी समय में हमें Ramagapithecus मिला, बीच में हमें गैप, उसमें इसके बीच में हमें कोई फॉसिल नहीं मिला। 15 to 14 million years से लेके डायरेक्ट हमें सीधा 200 million years या 200 million years में पहले वाला ही मिला है फॉसिल, बीच में हमें कुछ और मिला नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है गैप। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला है, ठीक है, जिसको हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस भी कहते हैं, उसके दो वैरायटीज हमें और मिला, हमने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस एंड बोएसी, ठीक है। उससे हमें आगे और क्या मिला 200 मिलियन ईयर्स पहले होमो हेबिलिस मिला, जिसका क्रैनिंग कैपेसिटी 650 to 800 सीसी है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कितना है 500 सीसी। उसके बाद हमें क्या मिला होमो इरेक्टस मिला, which is about having about cranial capacity about 900 सीसी, और वो हमें कब मिला 1.5 मिलियन ईयर्स पहले वाला फॉसिल है ये। उसके बाद फिर से हमें गैप हो गया, तो दो जगह आप गैप देख सकते हो, एक तो है फर्स्ट जो डायपिथेकस और रामेपिथेकस मिला, उसके बाद जो नेक्स्ट फॉसिल ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला, उसके बीच में गैप है, और होमो इरेक्टस और जो होमो सैपियंस फॉसिलिस जिसको हम क्रो-मैग्नन कहते हैं, उसके बीच में भी बहुत बड़ा गैप है, इसके बीच में भी हमें बहुत सारा फॉसिल्स नहीं है, इसे हम कहते हैं मिसिंग लिंक। ये दो जगह पे हमारे पास मिसिंग लिंक है, इसीलिए हम जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, इट्स अ टिल नाउ इट्स अ डिबेटेबल थिंग, इसीलिए हम डिबेट करते हैं, इसीलिए हमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि हमें बहुत सारा फॉसिल मिलना अभी तक बाकी है हमें, जो कि नहीं मिला, ठीक है। तो होमो इरेक्टस से आप देख सकते हो कि जो निएंडरथल मैन है जो वो डेवलप हुआ था, उनका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो 1400 सीसी था, क्रो-मैग्नन का कितना था 1600 सीसी, ठीक है, 650 सीसी। और उससे फाइनली हमें मॉडर्न मैन जो कि ऑलमोस्ट 25,000 ईयर्स बैक हमें ये फॉसिल, इसके पुराने फॉसिल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ समरी ऑफ द एंटायर discussion of entire human evolution what we have discussed, and I will also provide you some notes in PDF format in the group as well, so don't worry about that. So study
and read properly. And by this we have finished the chapter of evolution. So from the next video lecture, we will start the new unit and the new chapter. Till then, take care. Thank you.